ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਬੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਬੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਰਾਵੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ। ਉਧਰ ਹੀ ਆਇਓ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਜੈ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੈ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਵੋ ਬੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰੋ ਬੱਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਟੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪਿੱਲਰ ਬੰਟੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾ ਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ, ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਮਾਲ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਮਾਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਪੋर्ट एक्सपोर्ट, आदान प्रदान, जैसा दोगे वैसा लोगे, ये सब चीज़ें हैं। जितना भी किराने वाला जो होता है अपना किराने का काम, उसका वही काम होता है। सामान उठाना ग्राहक को दे देना, चाय वाला चाय बनानी ग्राहक को दे देनी, रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला, होजरी वाला, सब लोगों का वही काम होता है। उससे ज़्यादा उनका दिमाग नहीं चलता। फिर वो पैसे जो इकट्ठे कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। अच्छे स्कूल ही फिर उनकी तरह ही दुकानदारी जो चल रही है आजकल स्कूलों की। अच्छे स्कूल में जाओगे अच्छे पैसे लगेंगे आपको, बस लाला अच्छे पैसे हैं। आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा वो आपको पता है। आपके बच्चों को वो कुछ नहीं पढ़ाएगा। वही ABC है, वही आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ोगे, वही आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ोगे। बिल्कुल सही है। लेकिन आपका बच्चा जो अंग्रेजी स्कूल में जाएगा वहाँ पर AC चलेंगे। आजकल जो बस्ती का स्कूल होगा, आम स्कूल होगा, वहाँ पर AC नहीं चलेंगे, पंखे भी शायद कहीं स्कूलों में नहीं है आज हमारे हिंदुस्तान में। तो भैया वहाँ पर जो बच्चा है गर्मी और सर्दी सहने की उसमें हिम्मत आएगी, और जो साहूकार का बेटा होगा वह AC में रहने के लिए लायक बन जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा ना। वो देसी बच्चा नेचुरल होता है, हवा आएगी तो उसको ठंडक लगेगी। लेकिन जो अंग्रेजी बच्चा होता है, पैसे वाले का बच्चा होता है, जब AC लगेगा उसकी ठंड आएगी तभी वो महसूस करेगा। देसी बच्चा कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है, लेकिन अंग्रेजी बच्चा जो होता है, सेठ का बच्चा जो होता है, वही जाएगा जहाँ पर उसे इलेक्ट्रॉनिक हवा मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी का मतलब होता है जो आजकल चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे समाज में चल रहा है, वो बिजली के साथ ही जो कुछ चल रहा है। अंग्रेजी बच्चा जो वहीं पर अपना सर्वाइव करेगा, देसी बच्चा जो होता है वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। पता नहीं लगेगा आपको यार। जो अपने बच्चों को जो आप एजुकेशन दे रहे हैं ना, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा कुछ भी नहीं करेगा। जैन बोल रहे ना कल, जैन जो होता है क्रांति होती है। जब बच्चे देखते हैं यार ये क्या हो रहा है, तब फिर क्रांति आती है। जैन का मतलब होता है 12 साल का बच्चा जब पढ़ता है ना। हमारी देश की आज़ादी को 80 साल होने लगे हैं, तो आप 12 देखिए मेरे को 12 कैसे होते हैं, ऐसे आपको 12 का 12
12 दिन 24, 12 दी 36, 12 चौर 43, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 उस तो बाद मैंने आंदा नहीं किया 12 6 72, 12 7 बंटी नूं नहीं आंदा, 12 7 सानू नहीं पता की हुंदा। यानी कि साडियां इन्नियां पीढ़ियां लंघ चुकियां ने, उन्होंने कहते जेन, एक पीढ़ी लंघ गई, दूजी आ गई, तीजी आ गई, चौथी आ गई, पंजवीं आ गई। साढ़े इत्थे क्रांति नहीं आई है जे, अकल भी नहीं आई हैगी लाला, अकल भी नहीं आई हैगी। बस कितने तक पढ़ा था सानू, इत्थे तक जिथे तक थोने 12 6 72, 12 6 72 तो बाद 12 पिछ होर पाइए 79 बनते फिर नहीं पता नहीं, 12 6 72, 12 7 ये बनिया का लड़का होता है 1 मिनट में बता देता, किराने वाला होता है 1 मिनट में बता देता, क्योंकि हमारा दिमाग इधर चलता ही नहीं। कैलकुलेशन वही निकलेगी ना, जहाँ पर वही कैलकुलेशन निकले हम उसको याद नहीं रखते। हम 12 6 72 की जगह 73 क्यों नहीं होते, हमारा ये माइंड करता है अभी 73 क्यों नहीं हुआ, 72 क्यों हुआ। जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, बच्चा जो नई रिसर्च करेगा, इन्वेंशन करेगा, वो 12 6 72 नहीं 12 6 73 सोचेगा यार ये क्यों नहीं होता, वो कहते हैं उसका दिमाग चलता है। और जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना 12 6 72, वो सारे बच्चे 12 6 72 12 6 72 कर रहे हैं, CBSE वाले हो गए, और जो आजकल एक कैम्ब्रिज वाले जो दूसरे स्कूल चल पड़े इंटरनेशनल वाले, वो 12 6 72 रोज मचा रहे। लेकिन जो बच्चा कह रहे हैं ना 12 6 73 क्यों नहीं होते, वही बच्चा यानी कि क्रिएटिव माइंड वाला होगा, वही जाने कि देश को आगे लेके जाएगा, उसकी सोच ही देश को आगे बढ़ाएगी, उसकी सोच ही नई क्रांति लाएगी। लेकिन जो 12 6 72 12 6 72 कर रहे हैं ना, वो भैया कुछ नहीं करने वाले। जब आप नई सोच लेकर आएंगे, नया काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तभी जो नई जनरेशन है वो तभी कुछ ना कुछ नया करेगी। लेकिन वो हमारे जो कोल्लू का बैल होता है ना, वही घूम रहा है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वही घूम रहा है। जब से ये देश है, जब मैकाले पता नहीं कौन था मैकाले, क्या मैकाले ने हमारे को क्या दिया, वो क्लर्क टैप करते रहो, जब आपके उंगलियां चलनी बंद हो जाएंगी टैप के ऊपर तो कहते भाई रिटायरमेंट हो गई तेरी। अरे 60 साल की उम्र में तो बंदे को अकल आती है, और यहाँ पर 60 साल की उम्र में बंदे को रिटायर कर देते हैं, जा भैया घर जा। अब तो देख तू जिंदगी से खत्म हो गया अब लोग। बंटी के डैडी को भी घर बिठा दिया, अब कहते यार लाला अब तू काम कर रहा है, वो कहता क्या करे यार, अभी तो उसको पता चला था अभी कैसे कैसे काम होता है। ठीक है यार, फिजिकल काम करना बंद कर देते हैं आदमी, लेकिन जो मेंटली है, जो सोच है, वो तो कभी खत्म नहीं ना होती अगर वो बंदा नई सोच रखता है। ठीक है, कई लोग होते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं तो घर पे बैठ जाते हैं, क्या करें अब काम में नहीं कोई हैगा, बच्चे भी झिड़के मारने लग जाते हैं उसको। अरे यार जब तक आदमी काम कर सकता है, ट्रम्प को देखिए 80 साल का, उसको क्यों नहीं कहते आप लोग घर पे बैठ गए भैया। अरे जब हाथ पाँव चलने बंद हो जाए ना, बंदे का दिमाग काम करना बंद कर दे, तब उसको कहिए भी भाई तू एक पास एक तरफ होकर बैठ जाए। जब तक वो कर रहा है काम उसको करने दो। ठीक है भैया, कहते हैं कि भैया नौकरी से बंदे को रिटायर तब कर देते हैं नए लोग आके काम करेंगे। नए लोग तो फिर वही है जो नौकरियाँ कम है, बंदे ज़्यादा हैं। तो हम तो वैसी बातें करने के लिए जहाँ रुक जाते हैं, आप लोगों को हमारी बातें समझ नहीं आती। अभी मैं फेसबुक पर लिख कर आया हूँ चमचोर कौन होते हैं। अब आपको चमचोर का नहीं पता होगा कौन होते हैं। बंटी तन पता चमचोर कौन होते हैं? नहीं पता। बंटी को भी चमचोर को नहीं पता है। चमचोर आपको मिलेंगे भीड़ के बीच में मिलेंगे, धार्मिक स्थानों पर मिलेंगे। पता चला है? ठरकी कहते चमचोर होंगे जो कम करने नाल निकल जाना, कम करने नाल निकल जाना, नाले निकल जाना, नाले निकल जाना उन्हें। यह भी एक कला होती है। यानी कि जीन्स होते हैं ना, जो आपके जीन होते हैं कि जीन होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। भैया हमारी बातें सुनते रहा करो, आपको पल्ले तो पढ़ने वाला है नहीं कुछ। मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारा जो लेसन है, जो हमारा पाठ है, जो हमारा जो हम शुरुआत करते हैं, अभी मैं जहाँ पर बैठा मत्था टेकता रहूँ, भगवान जी मेरा काम कर दो, भगवान जी मेरा काम कर दो, भगवान जी मेरा काम कर दो, भगवान जी मेरा काम कर दो। काम थोड़ी होगा अगर मैं इस चीज़ को जहाँ से उठाकर वहाँ फेंकता रहूँगा, वहाँ से फेंकता हूँ। ये तो काम हो रहा है भैया, आज जोड़ के थोड़ी काम होता है। अरे कर्म करने से होता है जो कुछ होता है। आजकल लोगों की भीड़ चल रही है, भीड़ चल रही है। भैया तुम पहले इन लोगों को समझाया होता, 80 करोड़ जो हिंदू हैं, कि आप लोग क्या हैं। जो दूसरी धर्म के लोग हैं उनको भी समझाया होता। जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु वाले काम कीजिए ना। अभी कुछ लोग आए हैं, कुछ सोच बदलने के लिए आगे काम कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि हम लोग पहले भी विश्व का कल्याण चाहने वाले लोग हैं। हम लोग बहुत ही यानी कि दयालु किस्म के लोग होते हैं, हिंदू जो होते हैं। तो हम तो
विश्व का कल्याण चाहने वाले जो लोग होते हैं कि किसी को दुख ना हो, सभी सुखी रहें, यही तो हमारा एक जो सनातनियों का एक नारा कह लीजिए या एक धर्म कह लीजिए कि सभी को एक जैसा देखना है। लेकिन हम भटक चुके हैं और आप भी भटक चुके हैं भैया। कहीं मत्था टेकने से, कहीं कुछ करने से आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। सारे लोग पागल हो चुके हैं। कहीं पर धूप बत्ती करने से, दिया जगाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका साइको पागल हो गए आप लोग। कहीं धूप जगाते हैं, कि अगरबत्ती जगाते हैं, अगरबत्ती जगा के मांगते हैं मेरे को दे दे, है मेरे को दे दे, तेरे को क्या देगा वो तो खुद पता नहीं कहाँ पर है मांग रहा है तू हाथ जोड़ जोड़ के सड़कों पर किसी ने थोड़ा सा लगा दिया, हरा कपड़ा बिछा दिया तो वही फिर मांगने लग जाता है। ये पागल है यार तुम लोग हैं भाई। वहाँ चले तो क्यों यार, क्यों भगवान की इच्छा कर, अब क्यों भगवान से गाड़ी आ गई यार, गाड़ी आ गई। ये गाड़ी आती है और चली जाती है, लेकिन मंजिल पर तो लेकर जाते हैं ना। जब अगर आप कदम उठाओगे ना, कदम उठाओगे तभी आगे बढ़ोगे। कदम उठा के आगे बढ़ना पड़ता है। जब आप कदम उठाओगे नहीं और कहोगे भैया मैं आगे बढ़ता रहूं, जिंदगी में ये करता रहूं, भगवान जी ये कर दो, जब डॉक्टर को कुछ आता जाता नहीं है, डॉक्टर तो आपका इलाज नहीं कर सकता, फिर आप उसने मंदिर को बना रखा है, बीच में धार्मिक स्थान बना रखा है, इसलिए बना रखा है कि उसको आप नहीं कुछ आता डॉक्टर को। बाकी तो भैया जो आया है उसे जाना ही होगा ना। हम जितनी मर्जी बातें करते हैं आपके भेजे में नहीं आएंगी। हम सिर्फ आपको यही कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। जब तक आपकी सोच ही ना बदलेगी समाज बदलने वाला नहीं है। गाड़ी आई है, गाड़ी चली जाएगी। लोग आते हैं दुनिया से चले जाते हैं। इधर मुंडा है, लोग आते हैं दुनिया से चले जाते हैं। बात सुन, लोग आते हैं दुनिया से चले जाते हैं। ये दुनिया बदलने वाली नहीं हैगी। आप जिदा जम्मे से होते आप चले जाना है वा, मौत आनी आनी एक दिन आनी हैगी है। जे तुम कर्म करोगे तो तुम तभी कुछ मिलूगा। जे तुम धूप बत्ती जगा के करोगे हर बार मनु देर कितों मिल जूगा? नहीं, तुम कम करना पड़ेगा, मेहनत करनी चाहिए। हाँ मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेगा। हाँ अगरबत्तियां जगा के तेन कख नहीं मिलना है, पल्ले कख नहीं। हाँ पल्ले कख नहीं है। कर दी मेला मेला पल्ले नहीं धेला है। और की इधर आए नहीं मुंडे मंडे कितने चले गए सारे? पता नहीं। चल कोई गल नहीं, मौजा करो। चलिए मंडी।